कितना रस्सी तोड़ रखा सिया। हाँ म्यूट एवरीवन। चलिए कमॉन टॉपिक। देखिए व्हाट इज वॉइस। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ the verb which indicates whether a person or a thing does something or something has been done to a person or thing। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि वॉइस एक क्रिया का वह रूप है जो ये व्यक्त करता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु कोई कार्य जो है कर रहे हैं, ठीक है, या उनके लिए जो है, या तो उन वस्तु के लिए या तो उस जो है पर्सन के लिए कोई कार्य जो है किया जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वॉइस का मतलब वाच्य होता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं वाच्य, और वाच्य का मतलब जो है बोलना होता है, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट द टू काइंड्स ऑफ वॉइस, फर्स्ट एक्टिव वॉइस and second passive voice। we see in Hindi or the Sanskrit there are two or the three voices। in Hindi कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, but we see at the English literature, English grammar, only the two kinds of the voice, active voice and the passive voice। what is active voice? active voice क्या है, यानी कर्तृवाच्य जिसको हिंदी में कहते हैं, कर्तृवाच्य क्या है? तो we can say that when a verb form shows, when a verb form shows that the subject has done the something, मतलब क्या कह रहा है कि जब क्रिया ये दर्शाता हो कि कर्ता ने कुछ किया, यानी कर्ता जो है कुछ कर रहा है, तो वहां एक्टिव वॉइस होता है। Listen again, when a verb form shows that the subject has done something, that is called the active voice। example, the king killed a lion। the king killed a lion means राजा एक शेर को मारा, ठीक है। तो that is we can say that the king do the something, so we can change the passive voice also। what? a lion was killed by the king। a lion was killed by the king। let us see the passive voice। when a verb form shows that
something has been done to the subject means ये कह रहा है कि जब क्रिया यह दर्शाता हो कि कर्ता के लिए कुछ किया जा रहा हो, ठीक है, यानी कर्ता के लिए कुछ किया जाता है, इसे हम जो है पैसिव वॉइस कहते हैं। When a verb form shows that the something has been done to the subject and it is known as the passive voice. Example, a lion was killed by the king. We can see as example the king killed a lion. We can see the is a article, the king is a subject, killed is a verb, and a is the article, and lion is a object. How many kinds of object? There are two kinds of object. First, direct object, and second, indirect object. मतलब कह रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं। आप ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनता, यानी कि ट्रांजिटिव का ही पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव के पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि जब ये किसी भी प्रकार के सजीव प्रकार के, मतलब जैसे कहें कि ही गेव टू मी, जैसे अगर एग्जांपल हम देते हैं कि he gave me a pen, he gave me a pen, वह मुझे एक पेन दिया, सपोज कर लीजिए। तो मी क्या है, व्हाट इज मी? मी इज अ काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, that is direct object, which is used to a person or the living things subjects, living things only. But what is the indirect object? A pen means pen. Pen is non-living thing object. So we can say that the non-living things related to the indirect object. So there are the two kinds of object. First, direct object related to the living things, and the indirect object related to non-living things. And we see in this example कि me is a direct object and pain is indirect object. Understand? So that is changed in the passive voice. A lion killed is changed into the past, simple past, and changed into the was were plus V3, means a lion was killed by the king. मतलब कह क्या रहा है यहाँ पर कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो जाता है, और जब जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पर हो जाता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे जो है एक्टिव वॉइस से जो है पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके
कि किस तरीके से जो बनाते हैं, क्या क्या जो है इसके मूल में होते हैं, हम आगे जो है देखें कि कैसे जो है चेंज होते हैं टेंस और वर्ब जो है किस तरीके से इसमें चेंजिंग होती है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। टेंस एंड वर्ब। केवल आप ये भी देख सकते हैं कि केवल 8 टेंस के ही पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। ओनली टू 8 टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट आप कह सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट, इज, एम, आर और प्लस V3। नेक्स्ट है V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। V3 we can say also past participle, V3 means। एंड नेक्स्ट है सिंपल पास्ट। ये टेंस हैं was were प्लस V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। is, am, are प्लस being प्लस V3। is, am, are प्लस being प्लस V3। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। was, were प्लस being प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिख देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव प्लस बिन प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस बिन प्लस V3। उसके बाद है मॉडल्स। मॉडल मीन्स विल सेल का यूज। विल, सेल, कुड, कैन, मे, माइट, अनेक प्रकार के हैं। तो मॉडल प्लस बी, मॉडल्स प्लस बी प्लस V3। मॉडल प्लस हैव,
model plus have, model plus have plus been और प्लस V3। अब देखिए मॉडल की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज मॉडल। मॉडल, you read the previous classes also. Model, auxiliary model, ये that is three kinds of the verb: auxiliary and modal auxiliary, means primary auxiliary and modal auxiliary. So models means what? Can, could, may, might, shall, should, will, would, a lot of the model auxiliary. So model means models, just like we use the future indefinite what? Will, shall plus V1. We use to will, shall. What is the use shall? Model. So present indefinite, we can change the passive as present indefinite, future indefinite. So then we will be make a sentences, then will, shall plus be plus V3, like that. The future perfect will, shall plus have, will, shall plus have is called the future perfect, and future perfect will change the models, यानी will, shall plus have plus been plus V3। चलिए हम बताते हैं इसके आगे एग्जाम्पल कैसे जो है चेंज होता है, किस तरीके से जो हम टेंस को जो है चेंज करते हैं। तो he writes, he writes a letter, he writes a letter। अब देखिए बहुत ही इसमें जो मुख्य बात है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए वो क्या है, किस तरीके से जो है हम इसको जान सकते हैं। जय आदित्य, बताने का प्रयास करना कि जब हम पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का बनाना हो, सपोज वी आर मेकिंग आर द चेंजिंग इन द पैसिव वॉइस of the any active voice sentences, then which kinds of the things will be very sincerely to see on। कौन कौन सी चीजें हैं जिसको बहुत ही ज्यादा हमको ध्यान देने योग्य हैं। जैसे आप पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखते हैं कि किस ये सेंटेंस जो है किस टेंस में है, ये सेंटेंस किस टेंस में है, सबसे पहले आप पता लगाएंगे। दूसरा जो मुख्य बात है वो कि इसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आप ध्यान देंगे। दो चीजें हैं जिनको जो है बहुत ही हमें जो है जानकारी इसके लिए होनी चाहिए, जिससे हम बहुत ही सही जो है हम इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें आपको हम पता नहीं होती कि ये किस टेंस में है और इसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो गलतियां हमसे होने की संभावना होती है। जैसे यहीं पर हम देखें, ही राइट्स अ लेटर अगर हम लिखे हुए हैं तो किस टेंस में है। जय आदित्य, नेम द टेंस। ही राइट्स अ लेटर, यानी कि सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। क्यों? व्हाट इज द सिग्नल टू नो दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू द
present indefinite tense. The signal writes yes, s, yes और s. यही चीज है जो हमको इंडिकेट करती है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, ठीक है, क्योंकि इसमें राइट्स लगा है. दूसरी चीज हम देखें कि इसके जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सिंगुलर है, अ लेटर लिखा हुआ है. तो क्या होगा, अ लेटर के लिए आपको अ लेटर लिखेंगे, ठीक है, अ लेटर. अब आप यहाँ आए, अ लेटर के जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इस चेंज कैसे होता है, और जब सिंगल लेटर है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है. तो क्या होगा, अ लेटर इज, इज. फिर उसके बाद क्या कर रहा है, इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू देयर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अनुसार आपको ऑक्सिलरी का चुनाव करना है. अगर आई आ गया तो एम, और अगर प्लूरल होता है तो आर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है. अब यहाँ देखें कि ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यूज इज का प्रयोग कर लिया. उसके बाद V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, यानी अ लेटर इज रिटेन बाय हिम, ठीक है. अ लेटर इज रिटेन बाय हिम, ही का जो है हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, ये आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में है, जो कि सिंपल सेंटेंस में है. इसका हम निगेटिव भी बताते हैं. निगेटिव देखिए, अगर लिखा हुआ है कि he does not write a letter, he doesn't write a letter, वह पत्र नहीं लिखता है, ठीक है. जब इस तरह की बात आती है तो क्या करेंगे, ठीक उसी तरह का यहां भी बनेगा, लेकिन ये डज और डू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है. केवल हम निगेटिव का ही इसमें प्रयोग करेंगे, यानी नॉट का यूज करेंगे. तो क्या बनेगा यहाँ पर, ही. अब यहां देखिए, अ लेटर is not written by him. A letter is not written by him. आपका ये निगेटिव हो गया, ठीक है. लेकिन इसका इंट्रोगेटिव भी जो है बनता है. इंट्रोगेटिव भी आपको हम बता दें. अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि अगर हम ये कहते हैं कि डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, ठीक है, क्या वह एक पत्र लिखता है. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो गया. आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही राइट्स अ लेटर, निगेटिव में आपने देखा कि ही, यहाँ देखा कि ही डज नॉट राइट ए लेटर, और फिर इंट्रोगेटिव में आप देख रहे हैं कि डज ही राइट अ लेटर, यानी क्या वह एक पत्र लिखता है. तो क्या बनेगा यहाँ पर, अब देखिए डज को जो है यहाँ भी हम जो है रिमूव कर देंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है और प्लूरल. तो यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का. तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव में क्या लिखते हैं, इज, इज. उसके बाद ऑब्जेक्ट is a letter, is a letter written
by him, ठीक है, is a letter written by him, क्लियर है, बोलिए। जय आदित्य, जय आदित्य, क्लियर। चलिए एक अभी मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं जय आदित्य से ही। टेल जय आदित्य, श्याम, श्याम fly a kite, श्याम flies a kite, जय आदित्य वर्मा, A kite is flown by Shyam. kite is flown by श्याम। अगर हम कहते हैं कि श्याम does not fly a kite, तो क्या हो जाएगा? श्याम doesn't fly a kite. Same rules and same thing you will be make these sentences. Shyam does not, ये जगह पर हम क्या लिखेंगे? अगर हम कहते हैं कि श्याम does not fly a kite is not flown by Shyam. A kite is not flown by Shyam. अगर उसी को हम कहते हैं कि does Shyam fly a kite, तो क्या बनेगा? Does Shyam fly a kite? Fly kite. Tell anybody. Is Shyam flown a kite? कोई भी बताए। Shyam flown a kite? The sentence is interrogative sentence. Sir. Sir. हाँ, Sir, is Shyam flown a kite? is Shyam Flown a flown- kite. Sir, is kite is flown by Shyam. Right, right. Sir, is kite flown by Shyam? Okay, okay. क्लियर है तब सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, क्या होगा? मैं एक बार यहाँ समझा दूं पुनः। Simple present means present indefinite change into is, am, are plus V3. Like the simple past change into was, were plus V3. यानी V3 means past participle. And the present continuous change into is, am, are plus being. We use being because ing form, यानी fourth form.
Fourth form is I am related to the continuous. present continuous tense. So we use the being word. Is MR plus being plus V3 plus V3 यानी past participle. जय आदित्य. Third. Next question. Next question है, do you make a kite? Do you make a kite? क्या तुम एक पतंग बनाते हो? Change into passive voice. क्योंकि बहुत हंसी आ रही है. Do you make a kite? Change into passive voice. Answer is written here. You will be you see and you tell me what is the answer. Do you make a kite? A kite make. Do you make a kite? अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, यहाँ पर मैं बताता हूँ आप. Sir, is kite was being made by you? What? Tell me. Sir, is a kite was made by you? Made by. Was being made by you? Make नहीं, made by. Make change into the V3 past participle. अपने थर्ड फॉर्म में जो है चेंज हो जाएगा तो मेड हो जाता है, इसलिए हाँ मेड हो जाएगा. मीन्स काइट मेड बाय यू. क्या ये पतंग तुम्हारे द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डज शी कुक फूड? Does she cook food? Sir, is she cook food? Sir, is she cook food? Does she cook food? Sir, is she cook a food? Is she cook food? Yeah. Tell into passive voice. Does she cook food? क्या वह भोजन बनाती है? Did the food is cooked by her? Tell. Did the cooked Is Did the food is Sir, दो sir, is cook food is cooked by food cooked by is food cooked by you? sir. Sir, is cooked food by her. Sir, is food cooked by her. हाँ जी. Sir, Is food cooked cooked food by by her? क्या उसके her. भोजन बनाया जा रहा है? ठीक है, तो लगता है कि आप जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के यानी एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए जो है आप सीख गए होंगे. और एक दो और Yes, sir. एक दो और एग्जाम्पल बताएं. Yes, sir. संजना, में
makes chapati. संजना makes chapatis. संजना रोटियां बनाती है. Change into passive as. Is Sanjana Chapati Not is. make Is Sanjana make chapati? Chapati is by Sanjana. is made. Sir, chapati is made by Sanjana. No. सर ये पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं. हमने पहले ही बताया आपको कि जब कभी भी किसी सेंटेंस का आपको how much chapati बनाना is हो, तो made by ध्यान में देनी आवश्यक है वो है Chapati